further. Actually, in this session, though the name is your media tools, but in this session I am going to tell about the e-content generation tools, and one tool I will give the demo, that is your toolbook. So you know the three terms, that is your e-teaching learning system, mobile teaching learning system, and ubiquitous teaching learning system. Now, e-teaching learning system, you know, that is your electronic teaching learning system, where we use the electronic system. Any electronic device, with the use of electronics device, if we can learn something, that is known as your e-learning tools. Similarly, after the development of mobile equipment, then we have just started to get knowledge from the mobiles. Right, this person is learning something with mobiles. As we know that we also use mobile quite a lot, you know, without mobile you cannot think of that one day without mobile. But with mobile, generally we do the communication purposes, and maximum we do the email checking with the help of the mobile equipment. But when we say that with learning, you can learn with the mobiles, that means something extra we can learn with the help of the mobile or some tablets. For example, Amazon Kindle or Nook. Amazon Kindle, there is one software that is known as your, it is connected with iPod or iTouch. And when this Amazon Kindle app we can load in our mobiles, then we can see the e-books or the electronic library of the greatest digital library, that is Amazon.com. Similarly, Nook is also one software that we can download and we can install in our mobile, so that we can find out the e-learning books or the e-material. This is known as a mobile learning, but when we will use, we can definitely teach our children also, and in fact our student also, who is our target group, to take the knowledge from the mobile or the tablets. Otherwise, nowadays the students or the teenagers are, they're using the tablet or the mobile only for, you know, that is listening the songs or some for seeing some films and all these things. But to use constructively all this equipment, that should be the responsibility of us. Third one is your ubiquitous learning. Ubiquitous means that is any information, anytime, at any time, any place, it should be available to you. That is known as your ubiquitous. Similarly, name is your ubiquitous computing, ubiquitous learning, and ubiquitous equipment. For example, I'll just give a hot topic what is going on in computer science field, that is known as your cloud computing. Right? Cloud, you know that what do you mean by cloud, and what do you mean by the computing with the help of this cloud. Cloud is one thing that is available to you at any time. If you have bought that cloud, if you are a member of that cloud, if you know, if you have bought the, if you can access of that cloud, if you have access of that cloud, that means it is available to you at any time. At any place, it will be available to you. For example, infrastructure. As we know that is in government organization or in some other places, you know, private organizations, if you want to work with a higher specification system or higher specification any server configuration or any software which is of, you know, high range commercial rate. So in that case, our organization or in the government organization or maybe in the private organization, we do not get the accessibility of those servers or accessibility of those systems or the softwares. That time, if you have this cloud access, that time, anytime, if you want that, I want the server specification of this operating system, of this memory, of this hard disk, then at this time only it will be available to you. You can work with it at till the time you want, and after that, when you are not working with it, then you can release that. And it will save all your documents, all your, you know, data, whatever is you have put it into the server, everything will be stored safely in the cloud, right? That is known as your cloud computing. Cloud computing is one example of the ubiquitous computing.
So ubiquitous learning is somewhat like this. As a person standing in the mall, he can get information about anything, about the store information, about route navigation, about sightseeing information, about the air flight information, about the reservation, everything. So he will be able to get those information. That comes under the ubiquitous learning. So now we will further go to directly we will go to the e-learning. This is all I have already told you. That is the mobile learning and the u-learning, where it matches. So ubiquitous environment is the combination of the desktop environment and the mobile environment. That means you can get the information from the desktop also, or you can get the information from any virtual machine or any mobile equipment. You are not bothered about that. You want the information. For example, when we check the mails, definitely we are not bothered that mails or our contacts or our mails, where it has been saved. We are not bothered. We are bothered about our account, our password, and we are giving those password, and immediately we are getting the mail. For example, hotmail.com, yahoomail.com and google.com, anything, right? So these are nowadays, these have been stored in a cloud. Hotmail is the first cloud in the case of this software as a service. Similarly, Amazon is a first cloud that has been developed to give the infrastructure as a service. In the cloud there are three services: infrastructure as a service, then software as a service, and the platform as a service. Like this, that is, Hotmail is an example of the cloud, right? Similarly, any ubiquitous environment, it is only we are bothered that how the information, we are not bothered how the information we are getting, we are bothered about the information what we want that we are getting or not, right? So this is about the ubiquitous computing. This is just a combination of the desktop environment and the mobile equipment or the environment. About the definition of e-learning. E-learning हम लोग सारे समझते हैं कि e-learning का definition क्या है. कहीं पर भी इंटरनेट एनेबल लर्निंग हो, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली कुछ लर्निंग हो, कहीं पर भी फॉर एग्जांपल हम लोग सीडी लगा दिया या फॉर एग्जांपल डीवीडी हमने यूज कर दिया. बच्चे नर्सरी से शुरू करके अभी जो बच्चे टीनेजर्स हैं, फॉर एग्जांपल नियर अबाउट 1 ईयर और 1.5 ईयर से हम लोग उनको वो आपके जो राइम्स हैं, नर्सरी स्टोरीज हैं, ये सारे हम लोग सिखाना शुरू करते हैं. अबाउट फोनेटिक्स ऑल्सो, जो हम लोग ए बी सी डी ये सारे जो हम लोग सिखाते हैं, तो एबक ऑर्डर जो यहाँ पे फोनेटिक्स में बोलते हैं, ये भी हम लोग बच्चों को 1 साल से हम लोग वो सीडी के थ्रू हम लोग सिखाना शुरू करते हैं. दैट मीन्स बच्चा 1 साल के होने के साथ साथ ही वो ई लर्निंग क्या है वो सीख जाते हैं. Basically, he may not be knowing or she may not be knowing about the term, but हम लोग उनको e-learning के ऊपर इतना जोर देते हैं कि बच्चे जब 4 साल के बच्चा होता है, he is mostly used to use the mobiles, to use the computers. Even आपके मतलब जो भी आपके डेस्कटॉप है, क्या सॉफ्टवेयर है, ये भी बच्चे चलाना शुरू कर देते हैं. हम लोग उनको जन्म के बाद ही उनको e-learning के जो आपके एरिना है और जो हमारे युग है, हम बोल सकते हैं डिजिटल जो हमारे एज है, उसी एज में हम लोग उसको ढकेल देते हैं. सो ये जो ई लर्निंग है, दैट इज बेसिकली द इंटरनेट एनेबल लर्निंग और द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लर्निंग. Or also it gives us the opportunity to allow the people and organizations to keep up with the rapid changes that define the internet world. Definitely without the e-learning or without internet, we cannot be what we are today. If you are a teacher, तो फिर आपको सारे जो आपके जो साइड के जितने सारे आपके टॉपिक्स के ऊपर जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बुक पढ़ के भी आप सीख सकते हैं. और मैक्सिमम इफ यू डोंट हैव so many books with you, तो फिर आप सारे के सारे नॉलेज जो है आप इंटरनेट के थ्रू आप ले सकते हैं. Without internet, we are dead nowadays. Next is your uses of network technologies to create, foster, deliver and facilitate learning. That means जो कुछ हम लोग e-learning के मटेरियल हम बनाएंगे और e-learning के साथ हम लोग सीखेंगे और लोगों को सीखने देंगे, वो तभी पॉसिबल होगा इफ यू हैव द नेटवर्क टेक्नोलॉजीज. कंप्यूटर नेटवर्क के बिना ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स फर्स्ट जो हमारे यूज हैं और फर्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट नेसेसरी थिंग है, दैट इज योर
internet connection, right? It is also defined as a force which allow the people to keep up ahead of the global economy of our country. Now, I will just tell you that before telling you the e-learning material, that means e-content, how to create the e-learning material, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में कितने सारे ई-लर्निंग मटेरियल अभी तक हैं। इंडिया के बाहर जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज योर coursera.org, www.coursera.org। इसको हम लोग लिंक भी कर सकते हैं, बाकी इसमें मैंने इसका वेबसाइट भी शायद दिया होगा, नहीं इसका नहीं दिया। तो coursera.org जो है, ORG जो है, इसमें आपके क्या होते हैं कि जितने सारे आपके मटेरियल हैं, जैसे MIT की वेबसाइट में भी आप जाएंगे तो जितने सारे आपके इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के साथ और साइंस के रिलेटेड जितने सारे आपके मटेरियल हैं, सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके यहाँ पर वीडियो फिल्म्स जो है दैट यू कैन फाइंड आउट। तो आपके जो भी मटेरियल पे आप फिल्म वगैरह, आप कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना चाहते हैं, तो फिर यू विल गेट द आइडिया ऑफ द टॉपिक फ्रॉम दिस coursera.org। बट हम भी, ये तो बाहर की यूनिवर्सिटीज 16 बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड ने बनाए हैं, बट हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे जो इंडिया में दे हैव क्रिएटेड CCE कंटेंट पोर्टल, राइट। सो इसके पहले मैं और थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि CCE कंटेंट पोर्टल और जो कुछ पोर्टल अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ई कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो कहाँ से शुरू हुआ। दैट इज बेसिकली द ड्राइव ऑफ MHRD अंडर NMEICT प्रोजेक्ट एंड नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। This was the project started, I suppose, in 2009. In the year of 2009, it has been active in the year 2009. So MHRD ने क्या कहा कि सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, सारे IITs वगैरह, जितने सारे आपके हाई एंड यूनिवर्सिटीज हैं और द IITs हैं, उनको कुछ ये सारे जो एजुकेशन के ऊपर कुछ हमारे कुछ काम दिया हुआ था कि उन्होंने ये बताया कि आप MHRD विल गिव यू द ग्रांट एंड यू प्रिपेयर दोस मटेरियल, एंड उसके बाद वो सारे मटेरियल को आप अपने पोर्टल में लगाएं। तो वन पोर्टल इज योर CCE कंटेंट पोर्टल, जिसमें हमारे ई कंटेंट्स हैं वेरियस इंजीनियरिंग टॉपिक्स के ऊपर भी, और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन कोर्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज में हमारे पास मटेरियल है। ना मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर आपके वो सर्च करके भी हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग लेट अस स्टार्ट कि वो सर्च हो जाए, तब तक हम लोग यहाँ पर चलते भी हैं। ये स्टार्ट हो ही गया ऐसे। सो दिस इज योर साइट, दिस इज योर साइट नेम इज योर cc.nic.in, राइट। ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। दिस इज नोन एज योर cc.nic.in। तो ये जो साइट है, इसमें आपने देखा है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस। फॉर एग्जांपल आप लोग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऊपर काफी जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सारे कराते हैं। डिप्लोमा कॉलेजेस में भी हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कराते हैं। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के ऊपर जितने जितने बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जैसे आर्ट कल्चर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में लेती हूँ, तो यहाँ पर जितने सारे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बने हुए हैं, ये सारे आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। सिमिलरली ग्रामर एंड रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप देखिए 12 सीरीज आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स बने हुए हैं। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ग्रामर एंड रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर जितने सारे आपके लेक्चर्स हैं, दैट विल बी अवेलेबल टू यू। इसमें आपके नीचे ये है राइटिंग, करिकुलम राइटिंग, फिर आपके नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सपांशन ऑफ प्रोवर्ब्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, क्या क्या चीज है यहाँ पे सारे आपके बने हुए हैं कि इतने सारे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने ये बनाया। तो इसमें जब आपने क्लिक करेंगे तो फिर आपके वो लेक्चर की जो है वो सारे आपके जो आपके HWF फाइल है, फ्लैश फाइल है, ये सारे आप ओपन करके अपने अपने वीडियो फिल्म आप देख सकते हैं। तो ये चीज है कि एक पोर्टल है, दिस इज नोन एज योर CCE कंटेंट पोर्टल, राइट।
So similarly, you can if you are from engineering field, so you can just tell your teachers who are from English side or from the social science side, they can see all these videos and they can get to know all this about all this. Another is your PG Pathshala. This is also one project by NMEICT that has been given to IITs, and it has been developed 77 subjects at postgraduate level. It has been the e-learning content has been developed, and उसके website की जो address है, this is this. मैं एक बार verbally बता देती हूँ, http://epgp PG Pathshala, electronic PG Pathshala, epgp.inflibnet.ac.in. This is your website, and here it is this is your the snapshot of that PG Pathshala, and here you will see, if I just let me go up and let me just start that, if it can be open here. Okay. So this is your PG Pathshala website, and here you can see there are modules are linguistics and other modules are available. This is all the postgraduate level. In computers also you will get, for example, social science, food and nutrition, electronic science, English, biotechnology, and others also there, computer, comparative literature and computational sciences, and other also will be there definitely. Here these are. In computer science, in chemistry, in biometrics, adult education, architecture, botany, commerce, art science. So wherever, library science, information science, history, geology, linguistics. So these are the fields you have. For example, in computer science, if you are seeing, for example, आप सीखिए यहाँ पे 0 modules, यहाँ पर computer graphic में 1 module है. बहुत सारे बनाया नहीं होगा, but it is under the process of growing that. So in any field, if you want, for example, in biometrics, one module has been created in pharmacodynamics and kinetics. Similarly, in other fields, for example, say food technology, then you can see that 18 modules have been created in technology of fruits and vegetables. 35 modules has been created in food microbiology. So these are the already created, the e-learning modules. It has been developed by, and it has been named as your PG Pathshala portal, and it has also been under the project of NMEICT. Besides that, I am sure that your colleges must be knowing about this spoken tutorial and NPTEL. Both I know that NPTEL everybody knows, and NPTEL is not for the diploma course, definitely. The NPTEL has been created only for the degree colleges students. But since MHRD is under the view that we can increase the knowledge of the diploma students, and we can help the diploma students, and that's why the MHRD has given the NITERS, because NITERS is the best person, best institute to create the e-content material for the diploma students or the polytechnic students with the help of you teachers. Now we have already started creating the e-content for the UP state in Hindi. Definitely we are creating in Hindi because we are in the northern belt. So we think that Hindi is the most, important language, or whichever it is the most acceptable language for all the students of northern states. So we have started creating in Hindi. We have already started in programming in C and C++, and in electronics and electrical also we have given the duty to the UP teachers. So this we are creating, but we have the knowledge of, you must have knowledge the NPTEL, but somebody may not have the knowledge of what do you mean by the spoken tutorial. Spoken tutorial is again it is an NMEICT project, and it has been given to the IIT Bombay, and IIT Bombay has created a lot of spoken tutorial, in I think 18 languages. You can learn in Hindi, you can learn in Marathi, you can learn in Bengali, you can learn in Punjabi, you can learn in Bhojpuri, any other languages if you want. So all the tutorials will be converted into that language, and the material you will get to know. This is an audio tutorial and also video, but video of the expert is not available to you. Only the the scripting language in English or Hindi, and the voice of the expert will be there.
So this spoken tutorial has been created, and the students are they can learn the material, or they can learn the content in the self-paced learning. They will give you the all the CDs and material. It is available online. It is available in spoken tutorial.org. This is the website, that's spoken-tutorial.org. And whenever you will go to this website, you will get to know that all the material are available, and you can conduct the workshop for your own students. It will be the 2 hours workshop only, and after that those available, the material will be available to all the students whoever will be attending the workshop. And after 15 days, after 1 month, after 2 months, when the students will be, they will be aware of this knowledge, and they will be confident to give the test, then they can give the test also. There will be online test from IIT Bombay only, and if the student gets more than 45% in that test, then they will be getting the certificate, online certificate, at that time only. Immediately they will be receiving the certificate in their own ID. So it is a very good opportunity for the engineering colleges as well as for the diploma colleges to avail this site, and to go to this site and to avail all the possibilities to conduct the workshops at your own center. And similarly, like this NPTEL, our Chandigarh, NITER Chandigarh has created the NCTEL. I suppose that Dr. S.S. Patnaik in tomorrow's yesterday's class must have told about this NCTEL. But anyway, this is the snapshot of the spoken tutorial. This is the snapshot of NPTEL, and this is the snapshot of the NCTEL. So NCTEL, here in NCTEL, branch-wise, in the site you must have seen about the branches: applied science, civil engineering, computer science and engineering, curriculum development, educational management, then educational television center, and all the departments we have. And under the one department, the films whichever has been uploaded in NCTEL, that will be visible to you. Nearly 600 videos in all the departments we have already uploaded, and others are also in process. So this is a very good, all these videos are, whenever you will see this, for example, in cloud computing, there are from the basics overview से शुरू करके end तक, मतलब cloud computing के security, cloud computing के amazon.com में practical oriented purposes, कैसे हमारे PAS, कैसे servicing, कैसे हम लोग कर सकते हैं, IAS, SAS, ये सारी चीज, and initial part also, overview of the cloud computing के architecture क्या है, क्लाउड सिम क्या है, क्लाउड सिम के साथ सारे जो हमारे असाइनमेंट है, all these things are loaded into the cloud computing. Similarly, in cyber security, from the initial part to the ending part, so all these videos are available in case of this NCTEL part. Next is another point is your virtual labs. You must have seen, the engineering colleges definitely must have seen about this, and you must have done also this about this virtual labs. So virtual labs are created by all IITs, and in the IITs, for example, in the side you must have seen that IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, and so on. So this is a snapshot. So whenever you will click any IITs, for example IIT Delhi, then you will go to the virtual environment of the experiment, right? So they will give you that what is the purpose of this experiment, what are the requirement of the experiment, then how the experiment can be done. If you do not have in your organization the proper the equipment or the infrastructure for creating or for conducting this experiment at your center or in your lab, then you can go to in this site, and you can just tell the students to perform the experiment. They can perform. They have to take all the username and the ID, and they can perform the experiment. For example, hydraulic experiment, for mechanical also, mechatronics laboratory is also there. Where it is possible, then you can explore it, and you can tell your students to go there and to tell that whether if they cannot perform the personally or in person to with an equipment, but they can get the idea that how this experiment was going on and how the experiment can be conducted. So they will get some idea. So it is a very good opportunity to tell the students that how to create or how to do the virtual laboratories in this site.
And Enlist, this is also another NMEICT product, Enlist product, that is your National Library and Information Services. Then in this library, if you want to get the membership, you have to get this, you have to give, I think, 6,000 rupees or the 5,000 rupees in that. Then you can be member of this library. And if you can be member of the organization. Organization can be a member, not the person. So if your organization can become the member of giving this 5,000 rupees or 6,000 rupees, then as a person or as a teacher, it will be available to you all the journals which are available to Enlist. There are many journals are available there, international journals that are available in National Library. And you know that our honorable minister, HRD minister, Mrs. Srimati Smriti Irani ji, so she has forced to tell that that Enlist and all the government organizations, she has forced all the government organizations that you should be the member of this Enlist National Library, so that you can use more and more the international journals in the free of cost whichever is available there. Of course यहाँ पे ये available नहीं होगा जो ACM journals हो गए, IEEE journals हो गए, बट मोस्टली जितने सारे इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपके है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. So this is the snapshot of Enlist. Now this is all about that what are the e-contents available to us. Whenever we will get to know that how this the e-content has been created and has been generated, then only we can create our e-content very effectively. जब भी हम लोग e-content बनाना चाहते हैं तो फिर हम लोग हमेशा बोलते हैं पहले ये सारे मटेरियल को आप देख के आओ, तो फिर आप लोग को ये पता लगेगा कि हाउ दीज हैव बीन क्रिएटेड. उसके बाद उससे भी इफेक्टिवली हम लोग आप क्रिएट कर सकते हैं. ये जो ई कंटेंट जनरेशन में हम लोग जनरली जो मेन पॉइंट होती है वो है 3 पॉइंट. वन इज योर स्पीकर डोमिनेंस, अनदर इज योर टेक्स्ट डोमिनेंस, अनदर होती है आपके एनिमेशन डोमिनेंस. तो ये जो है ये वो है टेक्स्ट डोमिनेंस की साइड में आपने आपके स्पीकर को और एनिमेशन को रख दिया एंड पहले अपने टेक्स्ट को डोमिनेट कर दिया. उसके बाद एनिमेशन डोमिनेंस होती है, एक होती है स्पीकर डोमिनेंस. मेनली तो ये 3 पार्ट होती है. इसके अलावा आपने मल्टीमीडिया के सारे इनपुट्स वगैरह, वीडियो, ऑडियो, इमेज, पिक्चर, सारे कुछ आप इकट्ठा मिला के फिर आप ई कंटेंट जनरेशन करते हैं. अब डायरेक्टली मैं आऊंगी टूल्स के ऊपर. ई कंटेंट जनरेशन के ऊपर क्या टूल्स है? बेसिकली द टूल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज योर प्रोडक्शन टूल, अनदर इज योर लर्निंग टूल. प्रोडक्शन टूल के साथ आप ना बाय नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन टूल काम क्या करते हैं. प्रोडक्शन टूल बेसिकली दे आर यूजिंग फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द ई कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 आप छोड़ दीजिए, जैसे ऑथरिंग टूल एंड द CMS मैं छोड़ देती हूँ. इसके अलावा जितने सारे टूल्स यहाँ पर मैं लिखी हुई है, वन इज योर ऑडियो एडिटिंग टूल, अनदर इज योर वीडियो एडिटिंग टूल, ग्राफिक टूल, एनिमेशन टूल एंड सिमुलेशन टूल. ऑडियो एडिटिंग टूल आप जानते हैं जैसे जिसके हम लोग साउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द ऑडियो एडिटिंग ऑफ द एनी ऑडियो. आप माइक के थ्रू आपने कुछ एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वहां पे जो नॉइजेस वगैरह हैं वो कैसे आपने रिमूव करनी है. सिमिलरली वीडियो एडिटिंग, जो आपने वीडियो कलेक्ट कर लिया या वीडियो बना लिया उसको कैसे आपने एडिटिंग करना है. उसके बाद ग्राफिक टूल. ग्राफिक टूल तो बहुत यूज होती है, जैसे जनरली हम लोग इमेज एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज द फोटोशॉप. सिमिलरली फोटोशॉप में ये बोलूंगी कि फोटोशॉप वगैरह जो है ये सारे हमारे आपके क्या बोलते हैं कमर्शियल टूल्स हैं. यू हैव टू परचेज इट, राइट. इसके अलावा आप सारे टूल्स आप देख सकते हैं. जो स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है वो ओपन सोर्स है. For example, GIMP. This is a strong tool, open source tool for the image editing. Similarly, animation में जैसे हम लोग यूज करते हैं फ्लैश वगैरह हम लोग यूज करते हैं, फ्लैश, डायरेक्टर, ये सारे हम लोग यूज करते हैं. डायरेक्टर तो बेसिकली वी यूज फॉर द ऑथरिंग ओनली. फ्लैश जनरली यूज फॉर द एनिमेशन टूल. बट अभी जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लेंडर. ब्लेंडर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, ओपन सोर्स टूल फॉर द एनिमेशन. इसके अलावा हमारे पास है जैसे अभी इमेज के लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल स्केचअप, राइट. सिमिलरली एनिमेशन के लिए हम लोग आर्ट ऑफ इल्यूशन भी यूज करते हैं. आजकल हम लोग इसमें हम लोग काम कर रहे हैं जैसे ओपन सोर्स टूल के ऊपर. सो दीज आर ऑल द एनिमेशन टूल वी कैन यूज. सिमिलरली सिमुलेशन टूल.
सिमुलेशन टूल, एज यू नो, सिमुलेशन मीन्स कि कुछ प्रोटोटाइप हम लोग सिमुलेट करके दिखाते हैं जहां पर हमारे पूरे के पूरे फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल रोबोट सबके पास रोबोट लेना इज नॉट अ पॉसिबल थिंग. रोबोट या रोबोटिक्स में जब आप काम करते हैं तो फिर हम लोग सिमुलेशन के ऊपर काम करते हैं. सिमिलरली नेटवर्क में, ह्यूज नेटवर्क में आप काम करना चाहते हैं तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल. जनरली अपना जो लोकल या नेटवर्क होती है, जो हमारे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन पे होती हैं, दिस जनरली वी डू नॉट डिस्टर्ब, बिकॉज वहां पर हम लोग करते हैं तो हमारे सर्वर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो फिर हम लोग उसको सिमुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टूल, NS2, NS3, अपने ग्लोमोसिम यूज करते हैं, कोई भी सिमुलेशन. मैटलैब में आप सिमुलिंक यूज करते हैं. मैटलैब के अलावा साइलैब आप ओपन सोर्स यूज करते हैं तो फिर हम लोग सिमुलिंक यूज करते हैं. सिमुलिंक नहीं होता, वहां पर होती है XCOS. In Scilab we use the XCOS. So this type of simulation tool you use. Now जितने भी हम लोगों ने बनाया, ऑडियो एडिटिंग टूल भी हमने यूज किया, वीडियो एडिटिंग टूल भी यूज किया, हमने इमेज भी बना लिया, हमने एनिमेशन भी बना लिया, सिमुलेशन भी हमने कुछ यूज कर लिया. अब उसको जोड़ेंगे कौन? प्रोड्यूस तो तभी होगा जब हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं. आपने सोचा होगा कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, जैसे फिल्म प्रोड्यूसर है, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ एक पार्ट को नहीं लेते, वो सारे पार्ट को कितने अच्छी तरीके से फ्रूटफुल से वो प्रोड्यूस करते हैं, इकट्ठा बना के इंटीग्रेट करके. दैट इज हिज और हर स्टाइल. तो सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोडक्शन के लिए हमने सारे कुछ अलग अलग बना दिया. अब कितने अच्छी तरीके से उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट शुड बी योर एम. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट जो दो टूल्स हैं वो यूज करते हैं. वन इज योर ऑथरिंग टूल, अनदर इज योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ऑथरिंग टूल जब मैं बोलूंगी, वो मैक्सिमम ऑथरिंग टूल बाय नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे कमर्शियल टूल्स होंगे, एंड कमर्शियल टूल्स हैं भी. ऑथरिंग टूल्स के लिए हम लोग डायरेक्टर और द ऑथरवेयर हम लोग यूज करते थे पहले, जहां पर हम लोग ये सारे टूल्स में जितने सारे हमने फाइल बनाए सबको हम लोग इकट्ठा करते थे. उसके बाद जब ओपन सोर्स की डिमांड आए तो फिर ओपन सोर्स वाले ने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसा सिस्टम बनाए जिसको हम लोग कंटेंट, जितने सारे कंटेंट है उसको हम लोग इकट्ठा करके मैनेज कर सके. बाय नेम ओनली इट हैज, यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. एनी CMS, कोई भी CMS आप ले लीजिए, जो मैं अभी फाइनली आपको इन द फ्यूचर स्लाइड्स आई विल टेल यू. तो अबाउट द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बाकी दोनों काम है वही करते हैं, दोनों के काम वही है कि सारे जो टूल्स है या फाइल है सबको हम लोग इकट्ठा करके कितने अच्छी तरीके से हम लोग उसको मैनेज कर पाए. जब हमने प्रोड्यूसिंग कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूस तो हमने कर लिया, अभी फिल्म प्रोड्यूस हो गया, पीके जब फिल्म प्रोड्यूस हुआ तो फिर उसके बाद प्रोड्यूसर को या फिल्म प्रोडक्शन को क्या है एम, कि उसको कैसे कितने अच्छी तरीके से वो हम लोग लोगों के पास पहुंचाए. उसके लिए टीवी के हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को लर्निंग पहुंचाते हैं कि लोगों को पहुंचाएं कि पीके इज सच ए गुड फिल्म और कैसे फिल्म है, वो हम लोग एडवर्टाइज के थ्रू हम लोग उसको लर्न कराते हैं लोगों को. सिमिलरली यहाँ पर भी ई लर्निंग कंटेंट हम लोग बनाने के बाद हम लोग उसको लोगों को तो पहुंचाना है. पहुंचाएंगे कौन? ये हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पहुंचाएंगे. सो ये जो साइड में जितने सारे आपके टूल्स दिए हुए हैं, दीज आर ऑल द लर्निंग टूल्स. इनफैक्ट एक पहली तो है लर्निंग मैनेजमेंट टूल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट जो मैंने दिया लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, LCMS जो है सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा दोनों चीज यहाँ पे जुड़े हुए हैं. वन इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अनदर इज लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. दैट मीन्स इसके थ्रू LCMS जो है, इसके थ्रू हम लोग कंटेंट बना भी सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली हम लोग लर्न भी कर सकते हैं. जो आज मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा बट थोड़ा सा मैं दिखाना पसंद करूंगी. वो जो टूल बुक जो मैं आपको दिखाऊंगी, दैट विल बी द वन पार्ट ऑफ दिस LCMS, राइट. इसके अलावा ये पोर्टफोलियो, ये सारे ओपन सोर्स है. आपके ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जो कुछ आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप ले लीजिए, बहुत सारे टूल्स, स्काइप के साथ शुरू करके बहुत सारे टूल्स हैं. दीज आर ऑल अवेलेबल फॉर दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वर्चुअल क्लासरूम, वेब ब्लॉग, विकिपीडिया, जो हम लोग आपको अभी पहुंचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द गूगल हैंगआउट, दिस इज ऑल्सो द लर्निंग टूल. लर्निंग टूल में ये बोलूंगी कि जो कुछ हमने बनाया वो आपके पास पहुंचा रहे हैं, वो थ्रू यूज ऑफ दिस ICT कॉन्फ्रेंसिंग और द गूगल हैंगआउट. So this is also one type of learning tool, जो हम लोग यूज कर रहे हैं.
ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा एलएमएस जो है वो नल एंड वॉइड है। एलएमएस के अलावा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नल एंड वॉइड है। मतलब जब आपने पीके फिल्म बना लिया तो फिर जब तक अपने यूजर के पास नहीं पहुंचाओगे, जो ऑडियंस के पास नहीं पहुंचाओगे, तो फिर वो फिल्म बनाने की कोई मुद्दत नहीं रखता। सिमिलरली जो लोग बैठे हुए हैं और फिल्म ना बनाए तो फिर भी लोग कोई फायदा नहीं है। तो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। फिल्म चलेगा ऑडियंस के साथ, ऑडियंस चलेंगे फिल्म के साथ। तो ये चीज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एलएमएस भी ऐसा ही है, फिल्म और द ऑडियंस, राइट। सो एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो जनरली हम लोग यूज करते हैं इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन मैक्सिमम ऑफ द एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग यूज करते हैं वो PHP एंड द MySQL यूज करते हैं। PHP इज बेसिकली द ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओनली। इसका फुल फॉर्म होती है प्री हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, राइट। H for hypertext, one P is for pre, another P is for processor. So this is your generally the HTML जैसे हम लोग सीखते हैं, it is an extended version of HTML. HTML भी है, DHTML है, XML है, उसके बाद अभी PHP शुरू किया। तो PHP के साथ बहुत there is a lot of advantages are there. MySQL जो है it is connected with the PHP and it has security भी आप बहुत ज्यादा PHP में आप दे सकते हैं। और it is easy to learn also and easy to the creating developing भी बहुत easy होती है। तो इसीलिए हम लोग PHP and MySQL आजकल यूज करते हैं in everywhere in content management system. Learning management system, these are the examples of learning management system. Mostly these are all open source. Toolbook, ATutor, Toolbook नहीं है open source. ATutor, Accolade, Scorn, Flextree, Moodle. Moodle is a very strong learning management system software. Moodle के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, full form is your modular object oriented dynamic learning environment. By name only you can understand this is a modular. That means the modules are already created. कौन से modules? For example, course management. For example, faculty management. For example, attendance management. For example, student management, hostel management, fee management, right? All these modules are already created. You have to just customize it. For example, हमारे ETB डिपार्टमेंट में ये जो Moodle सॉफ्टवेयर के साथ वहां पर हम लोगों ने एक कस्टमाइज किया, एक LMS हमने बनाया। तो वो हमने ऑलरेडी, हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड इट, बट उसको हम लोग थोड़ा सा उसको रिफाइन करके देन वी विल गिव टू आवर क्लाइंट्स आल्सो, बिकॉज इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमाइज करने से डेफिनेटली वी हैव used our brains and all these things, but definitely it can be given to all the customers, though our clients. So it will be used for your जैसे आपने अटेंडेंस आपने मैनेज करना हो, फिर आपने असाइनमेंट आपने दिया, असाइनमेंट के आपने रिकॉर्ड रखना हो, फिर उसके बाद आपने कोई क्विज दिया स्टूडेंट्स को, क्विज की रिकॉर्ड रखना हो, फिर स्टूडेंट्स की जो टेस्ट है उस टेस्ट की रिकॉर्ड रखना हो। सिमिलरली उसका हॉस्टल मैनेजमेंट, उसका फी मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज देयर, एप्लीकेशन फॉर्म से शुरू करके एंड तक, रिजल्ट तक, तो सारे के सारे वहां पे LMS में इट इज अवेलेबल। It is undergoing process and definitely within very short days we will be able to create that LMS. So Moodle is a free and open source software. Of course Moodle install करने के लिए थोड़ा सा tough है, थोड़ा सा सिस्टम को वो करने के लिए हमने WAMP सर्वर या XAMPP सर्वर या MEMS सर्वर ये सारे हमें लोड करना जरूरी है। WAMP server मतलब Windows, Apache and MySQL. Similarly, if you want the Apple system में कुछ कर रहे हैं तो फिर Mac operating system चाहिए। Similarly, XAMPP server is used for Windows as well as for Linux oriented systems. So ये Moodle के साथ भी आप कुछ LMS मतलब Learning Management System आप बना सकते हैं, जिसके थ्रू जो कुछ आपने PPTs बनाया वो LMS में हम लोग डालेंगे। जो टीचर्स के जितने सारे सब्जेक्ट के ऊपर जितने सारे PPTs हैं, every PPTs will be put into the LMS so that it can go to all over the world. So this is your one learning management system. इसके अलावा ये सारे मैंने Moodle के बारे में लिखा हुआ है। This is your NITER चंडीगढ़ के जो हम लोग Moodle के बना रहे हैं, this is a snapshot of that. इसके अलावा Joomla is also one learning management system. eFront is also an open source learning management system. eFront
So this is the all these are the softwares, and you can learn it. You can download it and you can learn. Another open source e-content generation tools के बारे में मैंने यहाँ पर दिया. So it is very popular, WordPress. इसके अलावा classtools.net, it is also important. CamStudio and Camtasia Studio, जो आपको मैंने अभी बताया था कि स्पोकन ट्यूटोरियल जो IIT बॉम्बे ने बनाया, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, all these tutorials has been captured with this CamStudio. उन्होंने CamStudio के द्वारा, ये सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर ले, अपना उसी में अपने सिस्टम पे आप उसको ऑन करके अपना वीडियो कैप्चर करके आप सारे के सारे ट्यूटोरियल आप बना सकते हैं. एंड यू कैन ट्राई, नाउ ओनली यू कैन ट्राई. आप वहां पे जाके CamStudio डाउनलोड करें, और CamStudio के साथ आपका वेब कैमरा होना चाहिए. ऑटोमेटिकली दैट मतलब कैमरा विल बी ऑन, और उसके लैपटॉप में आप करिए, अपना जो टॉपिक है वो आप वहां पे CamStudio में लोड करें, और उसके बाद आप स्टूडेंट्स को आप दिखा सकते हैं. तो जो CamStudio के साथ जो भी आपके स्पोकन ट्यूटोरियल जो भी क्रिएटेड हुआ, सारे के सारे ये CamStudio में जनरेट हुआ. CamStudio and Camtasia Studio, these are very good software, and very easy and easy to use all this e-content बनाने के लिए. This is the short snapshot of classtools.net, as you are seeing here, that is written, that is your classtools.net. So this is one snapshot of classtools, that also we are working. And उसके बाद e-content जब आपने बना लिया, उसको डिलीवरी कैसे करेंगे. ठीक है, आपने लर्निंग भी कर लिया, आपने उसको दिखा भी दिया, उसके थ्रू आप डिलीवर कैसे करेंगे. डिलीवरी के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जरूरत है. जैसे हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, बोथ विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के साथ आप डिलीवरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो हमारे ईटीवी डिपार्टमेंट ऑलरेडी दे आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द हार्डवेयर ऑल्सो. हार्डवेयर इक्विपमेंट पे क्या है कि हमारे पास 5 लाइसेंसेस हैं, एंड एक एक इक्विपमेंट की आपके जो कीमत है, दैट इज योर 5 lakhs. दैट मीन्स हार्डवेयर के थ्रू आप करना चाहते हैं, दैट विल बी ह्यूज अमाउंट यू विल बी नीडिंग. इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द 10 सेंटर्स, तो फिर आपके 50 lakhs रुपीज आपके ईच एंड एवरी सेंटर में आपको सेटअप करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया, गूगल हैंगआउट, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, हम लोगों ने सिर्फ कैमरा और लैपटॉप की कैमरा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वेरी फ्रूटफुली हम लोग यूज कर सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे हार्डवेयर है, ऐसे विथ सॉफ्टवेयर ऑल्सो वी आर डूइंग इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. वी आर डूइंग with the help of the PeopleLink software. So PeopleLink is a software which we have taken the 5 licenses, and we can connect with the 5 centers only. Now till now it has only the 5 licenses, and more we are going to purchase it. So जैसे हमने हार्डवेयर इक्विपमेंट के साथ हमने लिया, PeopleLink सॉफ्टवेयर में एक बार हमने सॉफ्टवेयर ले लिया, और उसके बाद जितने मर्जी आप लाइसेंस लगाते जाओ और लाइसेंस के आपके कनेक्ट करते जाओ. So this is another one, that is video conferencing through PeopleLink software. That is a software. Google Hangout is completely free. Another free software is your Aview software. That is your Amrita Virtual Interactive E-Learning World software. It is a very important software, and all the IITs are using this Aview software for this their e-content or the ICT mode courses. I'm sure that Government Engineering College Rajasthan also, they must have done some courses with because these courses are for engineering colleges only. So you must have done with the Aview software and with any IITs. IIT Bombay and IIT Kharagpur are very much they are doing with the help of this Aview software. And this is the Amrita University has created this Aview software, and with this software also, this is also free software. You can download it. Nowadays version is your Aview 3.1. You can download from Google, and you can communicate with the the Amrita University or IIT Bombay, whatever they are using their server. You can connect with their server, and you can continuously create the ICT based courses. So these are all the process of this e-content delivery that I have told you. This is all about your what are the media tools are available. I have just told you that what are the media tools available nowadays, e-content tools and e-content material what are available, and what are the tools we are using for production, and what are the tools we are using for learning, as well as what are the tools we are used for delivery purposes. So these are all the media tools. Now we will use one software that is known as your toolbook.
I will just use the toolbook, but before using it, I'll just give you the magnifier so that you can just see it what we are going to do. Any question from any side? Any question from any center? Government Engineering College, Rajasthan. Any question from your side? हाँ जी सर। मैम हाँ जी बताइए। मैम ऑथराइजेशन टूल्स में सीएमएस टूल्स के बारे में बताइए मैडम। हाँ जी। नंबर ऑफ टूल्स तो हम कुछ रेफरेंस सुने एग्जांपल के लिए ऑथराइजेशन टूल और सीएमएस टूल ऑफरिंग टूल। हाँ ऑथरिंग टूल के लिए हम लोगों ने, मैंने अभी यहाँ पर स्लाइड में दिया था, दैट इज योर ऑथरवेयर एंड द डायरेक्टर, राइट, ऑथरवेयर एंड डायरेक्टर। और सीएमएस के लिए हम लोग यूज करते हैं पीएचपी एंड द माइस्क्ल, मेनली तो हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, जो ऑथरवेयर एंड वो है आपके डायरेक्टर है, दीज आर ऑल द कमर्शियल टूल्स, पीएचपी एंड माइस्क्ल आर द फ्री टूल्स। Any other question? Okay, let us go to आप माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, सो टूल बुक में क्या है, तो मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई लगाया सो दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। सो टूल बुक, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द टूल बुक। हाउ मच टाइम आई हैव? कितना टाइम है? 3:20। कितना तक? 4 बजे तक। ओके, so this software tool book, by name only you can understand, this is a tool to create a book, right? बुक में जैसे पेजेस होते हैं, 1 by 1 पेजेस होते हैं, सिमिलरली दिस इज अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ बुक जहां पर हम लोग पेजेस बना सकते हैं, राइट? और बुक मतलब इट इज ई कंटेंट बुक और द ई बुक इट विल बी क्रिएटिंग। अच्छा, उसमें देयर आर 3 पार्ट्स। वन इज योर टूल बुक असिस्टेंट, अनदर इज योर टूल बुक इंस्ट्रक्टर, थर्ड वन इज योर टूल बुक न्यूरो। अब टूल बुक असिस्टेंट जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास जितने सारे आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के साथ जब भी आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप यूज कर लीजिए टूल बुक असिस्टेंट। अब हर टाइम हमें सिर्फ स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, हम लोग उसको डायनामिक भी बनाना चाहते हैं। डायनामिक इन द सेंस कि आपने कुछ बनाया, उसके बाद आपने कुछ क्विजेस दिया, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ क्विजेस के आंसर करे, फिर आपने उसका स्कोरिंग भी दिया, फिर कुछ फीडबैक आप मांगते हैं, स्टूडेंट्स ने कुछ फीडबैक दिया, फिर उस फीडबैक में आपने कुछ जवाब दिया। तो इस टाइप की इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, राइट? तो इसीलिए हम लोग चलते हैं टूल बुक इंस्ट्रक्टर के पास। तो इंस्ट्रक्टर जो है, इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायनामिक पेजेस आप बना सकते हैं। थर्ड वन इज योर टूल बुक न्यूरॉन, न्यूरॉन के साथ आप पब्लिश कर सकते हैं, इसीलिए टूल बुक को बोलते हैं LCMS। उसके साथ आप कंटेंट बना भी सकते हैं, उसके साथ आप कंटेंट को पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश मतलब लर्निंग कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टूल बुक इज वन पार्ट ऑफ LCMS। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है टूल बुक इंस्ट्रक्टर, बट टूल बुक इंस्ट्रक्टर के साथ साथ हम लोग इसको न्यूरॉन के साथ हम लोग उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए, सेव जब करेंगे तो फिर पब्लिश आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग पहले क्रिएट करते हैं। तो दिस इज माय वन फर्स्ट पेज, जिसमें आपके ये सारे जो टूल्स हैं, ये जो मेरा माउस के साथ मूव कर रहे हैं हम लोग, ये वहां पर दिखाई दे रही है क्या? वहां पर तो नहीं आ रहा, इसी वाले स्क्रीन पे नहीं आ रहे, उधर आ रहे, इधर तो आ रहे, बट इसी वाला स्क्रीन पे आ रहे हैं क्या? इसी वाले स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो उनके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा?
जाने जाना. Is it visible to you? सेंटर्स में विजिबल है क्या? हाँ जी, वो कह रहे विजिबल है क्या? वो यार माइक खोलना पड़ेगा. कौन है? हेलो. हाँ जी सर बताइए. हाँ, यस मैम, यू आर विजिबल. विजिबल है? हाँ जी. चलो चलो ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली यहाँ पर पता नहीं लग रहा कि वेदर यू आर गेटिंग द विजिबिलिटी और नॉट. एनीवे लेट मी स्टार्ट. हाँ अच्छा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, these are the tools available here. So first of all we will ये जो tools यहाँ पर दिए हुए हैं इसके सारे कुछ description हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी है. यहाँ पे फर्स्ट वन जो है ये बोलते हैं एक्शन ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज योर बटन्स. थर्ड वन इज अ ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स. तो पहले हम लोग ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स में क्लिक करेंगे. ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स में जितने सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर वो जाके हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं. जैसे यहाँ पर फर्स्ट में मैं रख रही हूँ दैट इज योर ट्रायंगल, राइट. तो ट्रायंगल को हम लोग ड्रैग करके जैसे यहाँ पर ले आए और इसके बाद इसके कोई प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करना हो तो फिर हम लोग ये जो फर्स्ट बटन है दिस इज फॉर प्रॉपर्टीज एंड ये जो थर्ड बटन है येलो बटन है दिस इज फॉर द प्रोग्रामिंग राइटिंग, राइट. जब हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग लिखना चाहेंगे तो फिर हम लोग इसका थर्ड बटन में क्लिक करेंगे. जो फर्स्ट वन है दिस इज ओनली फॉर द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. तो जैसे हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की कोई प्रॉपर्टीज चेंज करना हो तो फिर हमने क्लिक कर लिया. क्लिक के बाद जो कुछ आप प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं जैसे फिल कलर वगैरह आपने चेंज किया, इसके बाद आपने ओके किया तो दैट हैज बीन चेंज. तो इसके आपने बड़ा छोटा जो मर्जी आप करना चाहते हैं. दीज आर ऑल द सिंपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग पेंट में या फोटोशॉप में हम लोग देखते हैं. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं. ये सारे राउंडेड, रेक्टेंगल, फ्री हैंड ड्राइंग, आर्क, लाइन एंड एंगल लाइन एंड एवरीथिंग आर पॉसिबल, राइट. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दैट इज योर टेक्स्ट फील्ड्स जिसके साथ हम लोग लिखना चाहते हैं. जो भी ड्राइंग है वो तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है. सिंपल आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं टेक्स्ट फील्ड. इसको हमने टेक्स्ट फील्ड को ओपन कर लिया. टेक्स्ट फील्ड में फर्स्ट जो है दिस इज योर ऑटो साइजिंग फील्ड. ऑटो साइजिंग फील्ड मतलब क्या है कि इसको आपने डायरेक्टली यहाँ पर लेके आए. ऑटो साइजिंग दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इट विल साइज इटसेल्फ. जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर दो चीज है. वन इज योर ऑटो बॉर्डर, राइट. ऑटो बॉर्डर एक ऑप्शन होती है, एक होती है ऑटो साइज. ऑटो साइज है ये तो ऑन ही है बिकॉज इट विल डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट. ऑटोमेटिकली वो रिसाइज हो जाएंगे. दैट मीन्स आपने जितने मर्जी आपने लिखा हो ये ऑटोमेटिकली इट विल रिसाइज, राइट. एक होती है ऑटो बॉर्डर. ऑटो बॉर्डर मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिक बॉर्डर नहीं है. ये लिखा हुआ है टॉगल्स बॉर्डर बिटवीन ऑथर एंड द रीडर मोड. देयर आर टू मोड. एक तो है जैसे आपने बुक लिखते हैं तो फिर दो पर्सन एसोसिएटेड होते हैं. वन इज योर ऑथर, अनदर इज योर रीडर. ऑथर लिखते हैं, रीडर पढ़ते हैं. तो यहाँ पर भी ये है कि ऑथर मोड में आप क्रिएट कर सकते हैं और रीडर मोड में आप सिर्फ उसको देख सकते हैं. यू कैन व्यू द कंटेंट व्हाट एवर द ऑथर हैज प्रिपेयर्ड. तो इसमें आप टॉगल करते हैं. टॉगल्स बॉर्डर बिटवीन द ऑथर लेवल एंड द रीडर मोड. और टॉगल मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपको बॉर्डर, दैट मीन रीडर मोड में आपको बॉर्डर नहीं दिखाई देगा. आपने यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा बॉर्डर तो फिर रीडर मोड में आपको बॉर्डर दिखाई देगा. इट विल बी टॉगलिंग बिटवीन वन एंड ऑन. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर टेक्स्ट मैंने कुछ भी लिख दिया. अब जब इसको मैं व्यू करूंगी, व्यू करने के लिए यहाँ पर व्यू ऑप्शन है जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है व्यू, रिव्यू ऑप्शन. सिमिलरली यहाँ पर भी व्यू ऑप्शन होती है. व्यू में है रीडर. रीडर मतलब यू जस्ट गो टू द रीडर मोड. आपने देखिए वहां पर आपके पास बॉर्डर थे बट यहाँ पर आपके पास बॉर्डर नहीं है. इसका छोटा बड़ा अगेन आपका यू कैन कम बैक टू द ऑथर लेवल. इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं. जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज में आप चले गए,
फिर उसके बाद आपने फॉन्ट वगैरह चेंज कर दिया, जैसे आपने फॉन्ट कर दिया 14, राइट, फॉन्ट थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया। उसके बाद जब भी आप यहाँ पर व्यू देखेंगे तो फिर पूरे के पूरे वो व्यू हो जाएगा, दैट मीन्स इट हैज बीन रिसाइज्ड, अपने आप में वो बड़ा कर लिया टू शो द ऑल द कंटेंट्स। और बाय चांस आप ऐसे नहीं चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक बनाती हूँ, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर देती हूँ तो फिर बॉर्डर होना चाहिए, मैं बॉर्डर नहीं देता तो फिर बॉर्डर नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑटो बॉर्डर है ये ऑलरेडी क्लिक्ड है, इसको हम लोग डीसिलेक्ट कर देंगे। डीसिलेक्ट का मतलब ये है कि इट विल नॉट टॉगल, ठीक है, वो लिखता जाएगा अपने आप, जो आप चाहते हैं वही आप लिखिए, और ऑटोमेटिकली जैसे आप चाहते हैं ऐसे ही आप व्यू दिखाई देगा। मतलब आपने बॉर्डर दिया तो फिर वो बॉर्डर दिखाई देगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत सारे टाइप्स की आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जैसे कॉम्बो बॉक्स हैं, लिस्ट बॉक्सेस हैं, मल्टीपल सिलेक्ट लिस्ट बॉक्स हैं, मल्टीपल सिलेक्ट कॉम्बो बॉक्स हैं। जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज है वो मैं दिखा देती हूँ। वन इज योर डेट फील्ड। डेट फील्ड हम लोग जानते हैं कि कहीं पर भी हम लोग डेट जो फील्ड है वो हम लोग लगाते हैं, ये लिखाई दे रही है 12/05/2003, राइट, बट जब आप व्यू करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने जो आज की जो डेट है वो लेके आ जाएंगे 6/1/2015, राइट, ऑटोमेटिकली लिखेंगे। इसका जो फॉर्मेटिंग है दैट यू कैन चेंज, MMDDYY से DDMMYY या MMDDYY या 4 times Y, वो आप जो कुछ आप देखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर है पेज नंबर, डिस्प्ले पेज नंबर। जैसे पेज नंबर आप यहाँ पर देते हैं, इफ वी हैव द वन पेज वो देगा पेज 1 of 1, राइट। इफ वी हैव द अनदर पेज, फॉर एग्जांपल हम लोग और एक पेज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट न्यू पेज, और इसका पेज का हमने नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पेज 2, दिस इज माय न्यू पेज। अब इसमें भी हम लोग कुछ और ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, जो कुछ हम लोगों ने अभी सीखा, जैसे ऑक्टागन फॉर एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड, एंड हियर आल्सो वी हैव गिवन फॉर एग्जांपल वन पेज नंबर, राइट, डिस्प्ले पेज नंबर। So this is my basically the first one. This is my first page. This is my first page and this is my second page, right? So ये automatically आपके आगे page 1 of 2 and page 2 of 2. जब आप देखना चाहते हैं इसको viewer form में, view में जब आप reader form में देखना चाहते हैं, then also you can see page 1 of 2, और जब नेक्स्ट पेज आप करेंगे पेज 2 of 2, ऑटोमेटिकली इट विल कम, राइट। सो ये पेज नंबर है। अनदर है कि जैसे आपने मार्की देना चाहते हैं, मार्की आप देते हैं, कोई भी वेबसाइट वगैरह आप बनाते हैं तो फिर आप मार्की देते हैं। मार्की इन द सेंस जो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आते हैं, या राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, या डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट, कोई भी डायरेक्शन आप देना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर आप चेंज कर सकते हैं स्लाइड चेंजिंग में या स्क्रॉलिंग में, राइट। और यहाँ पर है टेक्स्ट जो आप मार्की देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मार्की में ये लिखना चाहती हूँ, वेलकम टू नाइटर चंडीगढ़, सो दिस मार्की आई हैव पुट, एंड उसके बाद उसको आप जो आपने टेक्स्ट मतलब उसका जो साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं दैट ऑल्सो यू कैन डू। जैसे हमने 14 साइज कर दिया। उसके बाद जब आपने ये व्यू मोड में आप जाएंगे, अब देखिए उसी वाले पोजीशन में आपके जो मार्की है दैट विल बी स्टार्टिंग, ठीक है, जो भी आपने मार्की दिया दैट विल बी गोइंग ऑन। सो दिस इज अबाउट द मार्की। इसमें फायदा ये है कि कोई भी कंप्यूटर साइंस में कभी भी आप ये मार्की वगैरह जनरेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल PHP आप करना चाहते हैं, तो फिर ए लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग यू हैव टू राइट। बट फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, या इलेक्ट्रिकल से हैं, या कोई और डिपार्टमेंट से जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है, प्रोग्रामिंग नॉलेज सबके पास नहीं होता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देन ऑल्सो यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन कंटेंट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। मतलब इट इज वेरी इजी, यूजर फ्रेंडली, और कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल मार्की। अनदर चीज जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, दैट इज योर पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड जैसे हम लोग कहीं पर भी हम लोग लॉगिन एंड पासवर्ड देते हैं, तो फिर कुछ भी चीज हम लोग जब लिखते हैं उसको स्टार में बदल देते हैं, तो दैट इज एन एनक्रिप्शन कोडिंग हम लोग लिखते हैं कि कोई भी आपने वर्ड लिख रहे हो तो फिर दैट विल बी स्टोर्ड एज ए
the start form or some other form. तो यहाँ पर पासवर्ड फील्ड होती है जिसको हम लोग जब भी हम लोग लिखते हैं तो ऑलरेडी कुछ भी आप लिखेंगे वो स्टार्ट फॉर्म में ही आएंगे, तो इसके लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स इसको जब आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे इफ पासवर्ड इज चंडीगढ़ देन यू हैव टू डू दिस वर्क, इफ पासवर्ड इज NITTT देन यू हैव टू डू दिस वर्क, देन यू हैव टू राइट द प्रोग्रामिंग। और वो पासवर्ड की जो टेक्स्ट है दैट विल बी टेक्स्ट फील्ड में उसको सेव हो जाते हैं, उसका टेक्स्ट वाले लेके फिर आप उसको कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेविगेशन ऑब्जेक्ट्स। नेविगेशन ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में मैं आई, अभी चेंज किया, तो मैंने ऐसे ऑल्ट एंड द जो आपके डायरेक्शन है उसके साथ हम लोग चेक करके हम लोग फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज ऐसे हम लोग जा सकते हैं। बट यहाँ पर नेविगेशन पेज में क्या होती है, जैसे आपने नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ऐसे आप देखते हो कि बटन्स बने हुए हैं और उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी बने बनाए बटन्स आर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज जाने के लिए। जैसे आपने फर्स्ट पेज, तो यहाँ पर आप लगा देंगे, तो कुछ ना लिखना, यहाँ पर से फर्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। तो जैसे हम लोग यहाँ पर व्यू करेंगे, ऑलरेडी इट विल टेक कंसिडर दैट व्हाट इज द फर्स्ट पेज एंड इट विल कम टू द फर्स्ट पेज। सिमिलरली नेक्स्ट, सिमिलरली लास्ट, सिमिलरली प्रीवियस पेज। तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लिखना ना पड़े, इसीलिए ये बनाया गया है, सिर्फ आप ड्रैग करें और जहां मर्जी आप वहां पर यूज करें। इसके अलावा नेविगेशनल ऑब्जेक्ट्स के अलावा बटन्स होते हैं। बटन्स में क्या है, बटन्स में हम लोग हमारा प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लेके आपको दिखाती हूँ, जो हम लोग ये बताते हैं कि ये न्यू पेज में और एक क्रिएट कर लेती हूँ, दिस इज माय पेज 3, जहां पर हमने और कुछ बना देते हैं, दैट इज योर ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्क्वायर वी हैव क्रिएटेड, राइट। अब दिस इज माय थर्ड पेज, राइट। अब मैं एक बटन बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं प्रोग्रामिंग लिखूंगी, एंड प्रोग्रामिंग लिखने के बाद वहां पर जब मैं क्लिक करूंगी दैट इट विल गो टू द फर्स्ट पेज। अभी तो मैंने नेविगेशन ऑब्जेक्ट से शुरू किया, अब हम लोग अपना बटन बनाएंगे, तो उसके लिए है बटन्स, एक बटन्स बने हुए हैं, सो जिसको हम लोग बोलते हैं बटन्स। इसमें हमारे पास है पुश बटन, राइट। कोई भी बटन आप बना लीजिए, पुश बटन, कमांड बटन, शो, शैडो, डिफरेंट स्टाइल बटन है। यहाँ पे हमने बटन बना दिया। अब बटन में फास्ट, नेक्स्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं दैट यू कैन राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इसका प्रोग्रामिंग कहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम लोग प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम लोग फर्स्ट बटन यूज करते हैं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो फिर हम लोग थर्ड बटन यूज करते हैं। अब थर्ड बटन में हमने क्लिक कर दिया तो फिर इसके प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट है दैट हैज बीन ओपन। इसमें लिखा हुआ है, ऊपर शायद आपको विजिबल ना हो, मैं ये बता देती हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है ऑन क्लिक, ऑलरेडी इट हैज कम, दैट मीन्स बटन में आप क्लिक करेंगे तो फिर क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं उसमें भी प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। अब कौन से प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, सी, C++, विजुअल बेसिक, क्या प्रोग्रामिंग चाहिए वो तो हमें पता नहीं है, तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने का भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक एक बार क्लिक करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इट विल राइट इज ओन प्रोग्राम, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें ये ऑफ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम लोग लिखेंगे इंसर्ट, राइट। क्या हम लोग करना चाहते हैं, इंसर्ट मतलब आप एक एक्शन करना चाहते हो। ऑन क्लिक इज एन इवेंट, जिस इवेंट में हम लोग कुछ एक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज एन इवेंट, राइट। डांसिंग इज एन एक्शन, मैरिज में आप डांस कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो ऑन क्लिक है दिस इज योर इवेंट, राइट। और जिसमें हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक एक्शन करना चाहते हैं। कौन सा एक्शन हम लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जनरल एक्शन, ऑब्जेक्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन, नेविगेशन ऑप्शन। अब हमें जो चाहिए फर्स्ट एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेज में जाने के लिए दैट इज नेविगेशन एक्शन हमें चाहिए। तो फिर हमने नेविगेशन में हमने क्लिक कर लिया। नेविगेशन में भी 2-3 है, वन इज योर गो टू पेज, अनदर इज योर एग्जिट लेसन, एग्जिट बाहर आने के लिए, एक है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिक करेंगे वर्ड के डॉक्यूमेंट खोल जाए,
फॉर एग्जाम्पल आपने क्लिक करेंगे पावर पॉइंट खुल जाए। अभी हम लोग चाहते हैं गो टू पेज, दैट मीन्स किसी इसी लेसन में हम लोग पेज को हम लोग इधर उधर करें। सो हमने लिख दिया गो टू पेज। जैसे हमने गो टू पेज किया, ये बोल रहा है कि कौन से पेज में आप जाना चाहते हैं, फर्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में, लास्ट पेज में, या आप बैक करना चाहते हैं। तो फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फर्स्ट पेज में मैं जाना चाहती हूँ। फर्स्ट पेज में आपने क्लिक कर दिया, आपने कहा ओके, बस दैट्स ऑल। ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है कि गो टू द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। ये मुझे पता नहीं था कि ये लिखना पड़ेगा, बट इफ यू नो द स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट को बोलते हैं एक्शन स्क्रिप्ट। यहां पर यूज करते हैं ओपन स्क्रिप्ट। एक्शन स्क्रिप्ट जैसे हम लोग फ्लैश में लिखते हैं, यहां पर हम लोग यूज करते हैं ओपन स्क्रिप्ट। सो ओपन स्क्रिप्ट में क्या है, यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट इट, जस्ट आप क्लिक करेंगे अपने आप वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके सामने लिख के दे देगा। जैसे आपका ओके हो गया, दैट इज ऑन क्लिक यू शुड गो टू द फर्स्ट पेज। आपने ओके कर दिया, यस कर दिया, बस दैट्स ऑल। इसको आपने यस यस करते जाइए, वो बाइंड करना पड़ता है हमारे बुक के साथ, तो हमने बाइंड कर दिया। अब हम लोग जब भी हम लोग इसको व्यू करेंगे और रीडर में जाएंगे, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इट शुड कम टू द फर्स्ट पेज। तो दिस इज जस्ट ए सिंपल प्रोग्रामिंग कि हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। अब प्रोग्रामिंग अपने ऊपर है, कैसे आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉगिन और पासवर्ड बनाया, फिर उसके बाद आप टेस्टिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स में आपने कुछ लिखा, उसके ऊपर आप कुछ प्रोग्रामिंग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट बॉक्स बनाया, एक एक लिस्ट बॉक्स में आप जब क्लिक करेंगे तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ प्रोग्रामिंग चाहते हैं। बट इफ कंडीशन के ऊपर आप प्रोग्रामिंग चाहते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हियर, बट आई एम श्योर कि उसको सीखने के लिए आपकी कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो एक्शन की जरूरत है, राइट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज योर टू फाइंड द टू हाउ टू गिव द क्विजेस, राइट। Again मैं another page let me create so that it should be clear, that is your page 4 जैसे आपने बनाया। अब इसमें quizzes हम लोग कर सकते हैं। Quizzes may be of 3 types. One is a multiple choice type question, another is your fill up the blanks, and third one is your true false. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स में आप छोटे छोटे लिखने का भी आप दे सकते हैं, अबाउट 1 or 2 लाइन्स, वो भी पॉसिबिलिटी है इसमें। तो पहले हम लोग देखते हैं, एक ही टाइप की है, कोई भी एक आप क्लिक कर लीजिए। पहले हम लोग क्लिक करते हैं, दैट इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में देयर आर वेरियस टाइप्स। वन इज योर मल्टीपल चॉइस, वन इज, ये सब स्टाइल है, नथिंग एल्स, ये सब स्टाइल है आपके पास। तो जैसे मैंने फर्स्ट चॉइस अपने क्लियर कर लिया, आपको ये पता होगा कि चॉइसेस मतलब दीज आर माय आंसर्स। ऊपर क्वेश्चन होगा, पहले हम लोग सिर्फ चॉइसेस देते हैं so that we can write the answers. So answers को लिखने के लिए यहाँ पर है answers. तो ऑलरेडी चॉइस 1 लिखा हुआ है एंड इसमें एक ग्रीन साइन है। ग्रीन साइन का मतलब है कि दिस इज राइट आंसर। जो ये रेड साइन है जिसका मतलब है कि दीज आर रॉन्ग आंसर्स। आप चेंज कर सकते हैं। पहले हम लोग तो आंसर्स देंगे, जैसे चॉइस 1 में कोई भी हम लोग कोई भी आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ चंडीगढ़, राइट। एक आंसर मैंने दे दिया, अभी क्वेश्चन नहीं लिखा हमने। चॉइसेस 2 में मैंने आंसर दे दिया, फॉर एग्जांपल बठिंडा, राइट। चॉइसेस 3 में मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया राजस्थान, राइट। और चॉइसेस 4 में लेट मी गिव दैट बिहार, राइट। बेटर यही है कि बठिंडा को चेंज करके हम लोग पंजाब लिखे, स्टेट वाइज होगा हमारे क्वेश्चन। सो दीज आर माय 4 आंसर्स, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार। अब इसको कोई भी एक को आप करेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को आप रॉन्ग कर सकते हैं, दोनों को भी आप करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोनों को भी आप राइट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। और एक को राइट, दूसरे को राइट क्रॉस, ये भी आप कर सकते हैं। सो दीज आर माय आंसर्स। उसके बाद है स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब बाय डिफॉल्ट है हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है 1 एंड लोएस्ट पॉसिबल स्कोर है 0। इसके अलावा आप निगेटिव पॉजिटिव मार्क्स 2 मार्क्स दे सकते हैं, 1 मार्क दे सकते हैं, गलत के लिए -1 कर सकते हैं, जो भी आपका करना हो आप वो कर सकते हैं। फिर वो है इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग चाहते हैं, इमीडिएट फीडबैक देने का क्या मतलब है
इमीडिएट फीडबैक देने का मतलब है जैसे स्टूडेंट ने कुछ क्लिक कर दिया, साथ ही साथ उसको ये फीडबैक मिल जाए कि इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। बट जनरली हम लोग नहीं चाहते, हम लोग ये चाहते हैं कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन कर ले, उसके बाद हम लोग उसको स्कोरिंग दिखा दे कि तुझे 15 में आउट ऑफ 15 यू हैव गॉट 8 और 9 और 10 और 14, राइट? हम लोग ये चाहते हैं। तो इसीलिए सारे की इमीडिएट फीडबैक जो है उसको हमें डिलीट करना जरूरी है। जैसे आपने ये देखा, अभी मेरा चंडीगढ़ क्लिक है, चंडीगढ़ में फीडबैक टेक्स्ट आ रहा है इनकरेक्ट, दैट मीन्स बच्चे को ये पता लग जाएगा कि दिस इज इनकरेक्ट, उसको आप डिलीट कर दे। सिमिलरली पंजाब में भी इनकरेक्ट है, उसको भी हमने डिलीट कर दिया। सिमिलरली आपके पास राजस्थान है, उसको भी हमने राजस्थान की जो इमीडिएट फीडबैक है उसको करेक्ट आ रहा है, उसको भी हमने डिलीट कर दिया, बिकॉज हमने क्लिक किया इसीलिए वो अपने आप ही करेक्ट आ रहा है। और इसको भी इसको भी हमने इनकरेक्ट को डिलीट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर्स। तो आंसर जैसे हमने सेट कर दिया, सो दीज आर माय आंसर्स, ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद आप क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड्स में जाके आप क्वेश्चंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने कोई भी जो कुछ आप क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं यहाँ पर अपने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्वेश्चन पुट अप आपने कर दिया, कोई भी कुछ आपने लिख दिया, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसको जब आप व्यू करेंगे उसके बाद हमारे क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भी हमने लिख दिया, आंसर्स भी हमने लिख दिया, आप क्या करना पड़ेगा, आप हमें स्कोरिंग देनी पड़ेगी। स्कोरिंग मतलब बच्चों को जो भी आप स्कोर देना चाहते हैं, तो स्कोरिंग के लिए हमारे पास है स्कोरिंग एंड ट्रैकिंग। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, वन इज योर शो स्कोर, अनदर इज योर स्कोर दिस क्विज, अनदर इज योर स्कोर दिस पेज। तो शो स्कोर जो है वो हमारे पास एकदम से, शो स्कोर मतलब ये क्वेश्चन की जो आपने क्वेश्चन अपने अभी किया उसका स्कोरिंग क्या है। स्कोर दिस पेज मतलब ये एक ही पेज में आपने फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन आपने पुट अप किया और इकट्ठा 3 में कितने आंसर राइट है वो आप दिखाना चाहते हैं। एक है स्कोर दिस क्विज, ये है स्कोर दिस क्विज। स्कोर दिस क्विज मतलब आपने 5 पेज में 15 क्वेश्चंस लिखा, एक एक में 3-3 पेज, एंड आफ्टर 5th पेज आप एक बटन दे रहे हो स्कोर दिस क्विज, तो ऑटोमेटिकली इट विल चेक कि 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में कितने करेक्ट है एंड टोटल आंसर्स जो है, जो राइट आंसर है दैट इट विल गिव। अभी हमारे पास एक ही है तो फिर एक ही क्वेश्चंस का हम लोग जवाब देते हैं शो स्कोर। बस कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ शो स्कोर को ड्रैग करके रख दिया बस, और कुछ नहीं करना। वो अपने आप लेगा कि कौन सा वाला राइट है, राइट आंसर दिया हुआ है तो फिर आपके 1 देना है, रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं तो फिर उसको 0 लगानी है। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यू कर लिया, रीडर में चले गए। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन हमने पुट कर लिया, वी नो दैट राजस्थान इज द राइट आंसर। फॉर एग्जांपल हमने चंडीगढ़ दिया और शो स्कोर दिया, तो फिर ये दे रहा है 0 आउट ऑफ 1, राइट? ये दे रहा है आंसर 0 आउट ऑफ 1। जब हमने राजस्थान देंगे, राजस्थान क्लिक करके जब हमने शो स्कोर दिया तो फिर ये दे रहा है 1 आउट ऑफ 1। तो सिमिलरली बाकी जो क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर इसी क्वेश्चन में आप उसको क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, बच्चों को आप जवाब मतलब स्कोरिंग जो है वो दे सकते हैं। दिस इज एन जस्ट एन, मैं बोलूंगी कि बहुत ही मतलब कम, जितना मिनिमम हो सकते हैं उतना मिनिमम मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सेशन में बताया कि क्या क्या चीज मेन पार्ट होती है जो टूल बुक में होते हैं। तो टूल बुक के जो सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको किसी भी तरीके से आपको पहुंचा दूंगी, वो सीडीज होती है, तो उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल हैं। बाकी आप लोगों के कोई फैकल्टी मेंबर चंडीगढ़ में, निटर चंडीगढ़ में आते हैं तो फिर वो आके मेरे से मिले। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, डॉक्टर मैत्री। सो आप आके कंप्यूटर साइंस में मिले और कंप्यूटर साइंस में मेरे से आप सीडी लेके जा सकते हैं। और ये जो सीडी होगा उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं, सारे हेल्प अवेलेबल हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन से डायरेक्टली आप वहां पर सीख सकते हैं। So it will be very useful for you teacher also for starting purposes, e-content generation purposes, as well as आपके पास जो students होंगे उनको भी आप मोटिवेट कर सकते हैं सीखने के लिए, so that they can do, you know, जैसे students हमारे पास M.Tech की presentation देते हैं, तो M.Tech की presentation में आप यूज करते हैं, या B.Tech की presentation कोई एक्सपेरिमेंट के presentation देते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप बोल सकते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन इसमें बनाएं, so that after the presentation of some any you know experiment, they can put some question to the audience to all this in question multiple choice form,
एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस की जितने सारे राइट आंसर्स हैं, कितने राइट आंसर है, कितना स्कोरिंग हुआ, वो बता सकते हैं. So this will be, about that experiment only. So this way he can make his presentation very interactive, so that the audience सो ना जाए. तो इसीलिए आप लोग के as a teacher also it will be very useful, as well as for the students also it will be useful. So thank you very much. So this is your the presentation on the tool book, and now I will say that any questions from your side, if you want to put, you are most welcome. Any center, कौन सा Manda Institute of Technology. Any question from your side? No? हाँ बताइए. मैम इसकी जो सॉफ्टवेयर इसके थ्रू कोई EXE जनरेट कर सकते हैं क्या मैडम? EXE नहीं जनरेट कर सकते, इसको न्यूरॉन के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं. जब आप पब्लिश करेंगे और सर्वर पर रखेंगे तो ब्राउजर के थ्रू यू कैन एक्सेस दैट. ओके, देन टूल बुक एंड न्यूरॉन वो दोनों कनेक्टेड होंगे आपस में? हाँ, दोनों कनेक्टेड है. सॉफ्टवेयर में होता है न्यूरॉन. ओके, थैंक यू. टू पब्लिश दैट. एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, थैंक्स. Government College Rajasthan, from your side? उसको ये हाँ. हेलो. हाँ जी बताइए सर. हेलो मैडम. हाँ जी बताइए. हाँ. Thank you, madam. You have elaborated very good manner. But I want to ask here that this tool mainly in what applications we can use it? In creating content in any field. Any field means any field. In science, in this, कहीं पर भी आप कोई भी मटेरियल के लिए आप उसको e-content बनाने के लिए ये टूल आप यूज कर सकते हैं. स्पेसिफिकली किस एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा ठीक रहेगा? एप्लीकेशंस इन द सेंस कुछ भी आप जैसे सिमुलेशन ऑब्जेक्ट आप यूज करके कुछ बनाना चाहते हैं, यहाँ पर सिमुलेशन टूल भी होती है. सिमुलेशन यूज करके कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ भी आपने फिगर के साथ कुछ टेक्स्ट वगैरह आप लिखना चाहते हैं, बेसिकली इसको प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी प्रेजेंटेशन राइट, जैसे आपने टॉपिक के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन देना है, इसमें बनाइए, इसमें बना के एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू पुट सम क्वेश्चंस. वहां पे जो क्वेश्चंस है वहां पर आप स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चन पुट करिए. जो हम लोग डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसके लिए भी ये टूल बुक यूज हो सकती है. थैंक यू मैडम. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अच्छा एक